नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिलीगुड़ी में वर्ड आधारित टीकाकरण कराने की व्यवस्था करने की पहल। सिलीगुड़ी में टीकाकरण में अव्यवस्था को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सिलीगुड़ी में वर्ड आधारित टीकाकरण की पहल की है। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सोमवार को सिलीगुड़ी के गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दार्जिलिंग कालिंपोंग जिले के जिलाधिकारी समेत मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर सुशांत रॉय ने कहा कि टीकाकरण को वर्ड आधारित बनाया जाए तो आम आदमी का उत्पीड़न कम होगा और भीड़ से बचा जा सकेगा। एक दिन में कम से कम 2 से 3 वार्डों का चयन कर उस वार्ड में कुल 500 लोगों का टीकाकरण करने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें से 400 उस वार्ड के निवासी होंगे और शेष 100 टीके 12 साल के भीतर के बच्चों की माताओं को टीका लगाया जाएगा। इस मामले की जानकारी सिलीगुड़ी नगर निगम को दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड में एक नोडल अधिकारी होगा जो व्यवस्था की निगरानी करेगा। प्रत्येक वार्ड से एक सूची बनाई जाएगी और उस सूची के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग और कालिंपोंग जिले में कोरोना के मामलों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक है, इसलिए इन 2 जिलों में निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया गया। एयरपोर्ट के अलावा बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही नाका चेकिंग पॉइंट को भी बढ़ाया जाएगा। ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যেটা আছে আপনারা জানেন যে ভ্যাকসিন কম পাওয়ার জন্য একটা সমস্যা আমাদের আছেই, কিন্তু যেটুকু আমরা ভ্যাকসিন পাচ্ছি সেটাকে ঠিক মতনভাবে ইউটিলাইজ করতে পারলে মনে হয় সুবিধা হবে। মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। আজকে আমার বাড়িতে মানে খাওয়ানোর যে এটা 5 জনের আছে, সেটা যদি 15 জন চলে আসে গেস্ট আমি দিতে পারবো না, তখনই লাগবে গন্ডগোল, কেউ ভাত পাবে কেউ ডাল পাবে। তো এবারে ঘটনাটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটাকে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এখানে দেওয়া হয়। তো সেটা আমি ডিএম সাহেবকে বলেছি, সিএম সাহেবকেও বললাম, কালিম্পংকেও তাই। আমরা যদি ওয়ার্ড ভিত্তিক করে দিই তাহলে সুবিধা হয়। ওয়ার্ড ভিত্তিকটাতে খুব সুবিধে। এটা আমি জলপাইগুড়িতে এটা রেখেছিলাম যে ফার্মাসি ইনস্টিটিউটে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছিল, আপনারা জানেন রেগুলার ওখানে মারামারি হচ্ছিলো। ইভেন শিক্ষিত লোকরা, মানে কোনো একটা গ্রুপ আমি নাম করছি তারা এসে পর্যন্ত মারামারি করছিল। তো তখন আমার মনে হলো যে কই ইলেকশনের সময় তো ভোট দেওয়ার সময় তো এই মারামারিটা হয় না। তখন ভাবলাম তাহলে ওয়ার্ডের ভোটটা ওয়ার্ডেই হয়, ওই জন্য সবাইকে চেনে, কেউ মারামারি করে না। আমরা তখন করলাম কি, এখন জলপাইগুড়িতে যেটা করেছি সেটাই মডেলটা আমরা এখানে করতে চাইছি যে ওয়ার্ড ভিত্তিক যদি আমরা করে দিই, যেমন প্রত্যেক আমরা এক এক দিনে 2টো করে ওয়ার্ড ধরেছি, মানে 25টা ওয়ার্ড, এখানে একটু বেশি ওয়ার্ড আছে, 2টো করে ওয়ার্ড ধরেছি। 500 করে ভ্যাকসিনেশন ওই ওয়ার্ডের লোক ওখানেই পাবে। দুয়ারে ভ্যাকসিনেশন যেটা আছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, ওটা যেমন আছে এই 500 করে দেওয়া হবে, আমাদের 400 জন দেওয়া হবে যেরকম মানুষজন যারা আছেন তাদের উপরে, আর 100 জনকে দেওয়া হবে 12 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের মাদের। এই লিস্টটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করতে বলা হয়েছে এবং জলপাইগুড়িতে খুব ভালোভাবে শুরু হয়ে গেছে। এবং বিশ্বাস করুন উৎসবের মেজাজেই কিন্তু সবাই ভ্যাকসিনেশন নিচ্ছে, কোথাও কোনো ইনিশিয়ালি একটু গন্ডগোল হয়েছিল। তো সেটা আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, সিএম সাহেবকে বললাম যদি সম্ভব হয় এটা আপনাদের যা লাগবে আমি সেদিক থেকে সাহায্য করব। ভ্যাকসিনেশন বাড়ানোর কথা আমি বলেছি, যে ভ্যাকসিন পাওয়া নিয়ে ব্যাপারটা সেটা আমি আগামীকাল যেখানে বললাম আমি সেখান থেকে বলে ভ্যাকসিনটা বাড়ানোর চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে যদি ওয়ার্ড ভিত্তিক 2টো বা 3টে মানে এক এক দিনে ধরুন 3টে বা 4টে করে বা এরকমভাবে ওয়ার্ড করে করা যায় তাহলে দেখবেন এই গণ্ডগোলটা থাকবে না। সবাই তো সবাইকে চেনে, আপনি আপনার পাশের জন্য সঙ্গে মারামারি করবেন না, তো সেটাই প্ল্যান করা হয়েছে এখানে। আগামী দিনে ওনারা একটুখানি চিন্তাভাবনা করে দেবেন, কারণ ওনার ম্যান পাওয়ারের ব্যাপার থাকবে, সেগুলো আশা করি হয়ে যায়। ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবিলিটি একটা প্রশ্ন থাকবে, কিন্তু সেটা করা হবে। 1 নম্বর। নেক্সট যেটা সেটা প্রত্যেক শুক্রবার বা শনিবার করে সিএমএইচের তরফ থেকে আপনাদেরকে সবচেয়ে ভালো হবে একটু জেনে নেবেন যে আগামী সপ্তাহে কবে মানে আগামী সপ্তাহে কোথায় ভ্যাকসিন হবে। কি
कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रशासन ने फुलेश्वरी बाजार को किया बंद। व्यवसायियों में नाराजगी, कई भीड़ भाड़ वाले स्थान को किया गया सील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने सिलीगुड़ी शहर के फुलेश्वरी बाजार समेत कई भीड़ भाड़ वाले स्थानों को सोमवार से बंद कर दिया है। सिलीगुड़ी नगर निगम और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त की पहल पर सोमवार से फुलेश्वरी बाजार बंद कर दिया गया। इस इलाके में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया। दूसरी ओर व्यापारियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन ने बाजार को 3 दिन खुला रखने या मास्क पहनने पर जोर देने के बजाय बाजार को पूरी तरीके से बंद करना अनुचित है। उन्होंने कहा, कच्चे माल जैसे मछली और मांस के दुकानदारों को प्रशासन के इस फैसले से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। মানুষগুলা গরিব মানুষগুলা কি করবে? বড় লোকদের কোনো ব্যাপার নাই, গরিবগুলা কি করবে? যে ব্যবসাগুলা কি করবে? সব পচা মাছ, কাঁচা মাছ হোক, সবজি হোক, সবারই কষ্ট। এগুলো তো করা ঠিক না সরকার। এটা রাইখে দিলাম মুদিখানা দোকান যদি রাইখে দিল 10 দিন করে প্যাকেট খুলে দিল, ঠিক আছে, কত অসুবিধা হবে না। কেন ডেট দেওয়া লাগে? লেস হচ্ছে না, আমাদের তো লেস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাঁচা মাল আজকে রাখবো, কালকে দিন পর পাবো না, শেষ ফালাই দেবেন। ওই বেচার বন্ধ করবে আমাদের আগে জানানো উচিত ছিল। আমাদের না জানায় আচমকাই মাছ বাজারটা বন্ধ করে দিছে। এই যে আমাদের হাজার হাজার টাকার মাছ এখন পচে যাবে, এই দায়িত্ব কেউ দিবে না আমাদের। 2 কেজি চাল কেউ কিনে দিতে পারবে না, অথচ আমাদের পেটের খাবারটা নিয়ে নিচ্ছে। এটা জবরদস্তি বন্ধ করা হচ্ছে। এত করোনা গেছে তখন কি এরকম বন্ধ করে নেয়? হঠাৎ করে 7 দিন বন্ধ রাখো, এই যে হাজার হাজার টাকার মাছ আমাদের পচে যাবে, কে দিবে এই টাকাটা আমাদের? सिलीगुड़ी में अवैध टोटो के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई शुरू, कई टोटो जब्त। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को शहर के मुख्य सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसके मद्देनजर आज से शहर की मुख्य सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो की धरपकड़ शुरू कर दी गई। सोमवार सुबह से शहर के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस के अभियान में सैकड़ों की संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो पकड़े जा चुके थे। गौरतलब है कि शहर की मुख्य सड़कों पर कई महीनों से बेहिसाब टोटो चल रहे हैं, जिससे शहर में भारी जाम की समस्या देखी जाती है। काफी शिकायतें मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर की मुख्य सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले टोटो की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध टोटो के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। सिलीगुड़ी में लोगों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर सोमवार को वार्ड नंबर 14 के किरण चंद्र भवन में लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। 14 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद श्रावणी दत्ता ने बताया कि आज करीब 200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, आज 3 कैटेगरी में लोगों को टीका दिया जा रहा था। আজকে কোভিডশিল্ড ফার্স্ট ডোজ আমাদের এসএমসির তরফ থেকে এখানে 200 জনকে টিকাকরণ করা হবে। 3টে স্লটে এটাকে ভাগ করা হয়েছে। আমরা কুপন ইস্যু করে দিয়েছি। 0 থেকে 12 ইয়ার্স মা, বাচ্চাদের মা, 45 অ্যাভাব হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ এবং 70 অ্যাভাব ওল্ড যারা বৃদ্ধারা আছেন তাদেরকে আমরা কালকে সম্পূর্ণ কুপন বিভিন্নভাবে তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি। আজকে খুব দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্যানিটাইজ সব কিছু করে আমরা এই টিকাকরণ কর্মসূচি। सेंट्रल कॉलोनी दुर्गोत्सव की खूटी पूजा आयोजित, पांडाल निर्माण का काम शुरू। सिलीगुड़ी के सेंट्रल कॉलोनी के इस वर्ष के दुर्गा पूजा के पांडाल बनने का काम सोमवार को खूटी पूजा के साथ शुरू हो गया। बता दें कि दुर्गा पूजा बंगाली समाज में सबसे महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक है। हर साल बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, पर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से हर जगह छोटे आकार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सिलीगुड़ी सेंट्रल कॉलोनी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। आज सेंट्रल कॉलोनी के मैदान में दुर्गा पूजा के पांडाल निर्माण के लिए खूटी पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होकर पूजा समिति के सदस्यों ने शहरवासियों को सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा के आयोजन के बारे में जानकारी दी है। অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনে আমরা প্রত্যেক বছরই উল্টো রথের দিন আমরা খুঁটি পুজো করি। তো এটা আমাদের একটা নিয়ম, তো নিয়মটাই আমরা এই বছরও করলাম আর কি। তাই এখনও পর্যন্ত সেরকমভাবে সরকারি গাইডলাইন্স এখনও কী হবে না হবে, এখনও পুজোর আরও 80-85 দিন বাকি।
তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখনোভাবে আমরা সেইভাবে এখনও কোনো প্রস্তুতি নিইনি। এখন সরকারি গাইডলাইন কি হয় তা মেনেই আমরা এই বছরও পূজা করব, দেবী আরাধনা আমরা করব। সে ছোটো করেই হোক, লোক সমাগম অত হবে না হয়তো, যা বোঝা যাচ্ছে যা থার্ড ডেও আসছে আর কি, আমরা ওই মেনেই চলবো। আমরা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমাদের এটা একটা ট্র্যাডিশন বলতে পারেন যে আমরা প্রত্যেক বছর উল্টো রথের দিন খুঁটি পুজো করি, এবং এবছরও সেই ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখবার জন্য আজকের দিন আমরা খুঁটি পুজো করলাম ঠিকই, কিন্তু যেভাবে করোনার মার্কেটে চারিদিকে যা অবস্থা হচ্ছে তাতে সরকারি যে গাইডলাইন দেবে, সরকার যেভাবে বেঁধে দেবে, যেই প্রোটোকলগুলো মেনটেন করতে বলবে সেগুলো মেনটেন করে খুঁটি পুজো হলো এবং তাতে ঘট পুজো হোক বা ছোটো যেরকমই পুজো হোক আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে করব। আপনাদের মধ্যে দিয়ে আমরা একটাই মানুষকে জানাতে চাই, পুজোর সময় ঘরে থাকুন, মাস্ক পরুন, প্রতিমা যদি দেখতেও আসেন দিনের বেলা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মাস্ক পরে আসবেন। আমরা ছোট করলে পরেও চেষ্টা করব ছোটোর মধ্যে ভালো কীভাবে উত্তরবঙ্গের বাসীকে উপহার দেওয়া যায়, এবং কোভিড প্রোটোকল মেনেই অবশ্যই করব। এবং আপনাদের মধ্যে দিয়ে এটুকু জানাতে চাই, পুজো করতে গেলে একটা বিশাল অর্থের প্রয়োজন হয়। अभियुक्त से पूछताछ कर बरामद किया गया चोरी के सामान। एनजेपी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी सहित कई जगहों पर लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। चोरी से संबंधित शिकायत लिखित रूप से एनजेपी थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस हरकत में आई और 7 बदमाशों को सिपाहीपाड़ा, खटाल बस्ती, फुलबाड़ी ट्रक टर्मिनस, हरिपुर, फुलबाड़ी, बदालगंज से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी दीपक सेन से पूछताछ कर चोरी की 3 बाइक, 6 टीवी, 4 लैपटॉप, 5 गैस सिलेंडर, 4 पंप, 1 कैमरा और मंदिर से चोरी किए गए कुछ सामान बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनजेपी थाने से सटे अलग अलग इलाकों में आरोपी चोरी करते थे। थाने में उनके खिलाफ कई आरोप दर्ज है। 10 दिनों के रिमांड पर 3 बंदियों से पूछताछ के बाद रविवार को एनजेपी स्टेशन रेलवे पार्किंग से फर्जी नंबर प्लेट वाली एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों को आज यानी सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit
a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। कोरोना के साए में इस साल भी 21 जुलाई को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। बाजारों में दिख रही है चहल पहल। कोरोना के साए में देश भर में 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद-उल अज़हा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक अदा करने की तैयारी है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल लोगों को घरों में ही नमाज अदा करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की अनुमति मिल सकती है। इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से ईद-उल-अज़हा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि ईद-उल-अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। मनाया जाता है जिसके मालदार जो होता है वो अल्लाह के राह में कुर्बानी करता है और अल्लाह को खुश करना चाहता है, और उसी के वजह से नमाज होती है। नमाज भी पढ़ता है आदमी, नमाज के बाद अल्लाह के राह में कुर्बानी करता है और खुशी मनाता है। हर साल तो मनाया जाता है, लेकिन इस बीच भी कोविड का कहर है, तो कैसे मनाएंगे? कोविड के वजह से कुर्बानी कम है, कम किया जाएगा। जिसके पास पैसा है वो करेगा, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं करेगा। आदमी तो हर आदमी परेशान अभी है ही है। जो बेसी पैसा वाला है वही करेगा, जो नॉर्मल है वो नहीं कर पाएगा। और ईद की नमाज जो है सबको पढ़ेगा ही, और ईदगाह में नहीं होगा, घर में ही नमाज पढ़ेगा आदमी। सभी के लिए क्या मैसेज देंगे? यही है कि ईद का है, कुर्बानी का है, मुबारकबाद पेश करेंगे। तमाम देशवासियों को कुर्बानी का मुबारकबाद पेश करेंगे और बीमारी से बचने के लिए दुआ करते हैं। बाजार कैसा चल रहा है? बाजार तो अभी अच्छा नहीं चल रहा। बाजार क्या है कि 50% जैसा बाजार चल रहा है। जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा। महंगाई की वजह से आदमी परेशान है, कोविड की वजह से नहीं चल पा रहा है। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन चालक एवं तृणमूल श्रमिक संघ के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन चालक एवं तृणमूल श्रमिक संघ की ओर से सोमवार को सिलीगुड़ी डिपो में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने किया। शिविर का आयोजन तराई लायंस क्लब के सहयोग से किया गया। रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि शिविर में एकत्रित रक्त को तराई लायंस ब्लड बैंक भेजा जाएगा। পরিবহন সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়ন আইনটিসি অনুমোদিত তাদের আজকে রক্তদান শিবির হচ্ছে। বড় করে তারা আয়োজন করছে, প্রত্যেকবার তারা রক্তদান করে। এবার কোভিড আবহের মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন এই মুহূর্তে তারা খবর পেয়েছে যে 100 ইউনিট ব্লাড তারা তাদের কর্মচারীরা আজকে দিচ্ছে। এটা একটা খুব সুন্দর ভালো উদ্যোগ। সেই উদ্যোগকে সমর্থন জানাতে এখানে আসা। এই অতিমারির মধ্যেও আমাদের কর্মচারী বন্ধুরা তারা জীবনযাত্রা সচল রাখার জন্য গভর্নমেন্ট যেভাবে সরকারি পরিবহন রাস্তায় নামাচ্ছেন, তারাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটা করছেন। সেই জন্য তাদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू। टेट पास अभ्यर्थियों की हो रही है काउंसलिंग। उमड़ी भीड़। जलपाईगुड़ी में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। टेट परीक्षा पास करने वालों की काउंसलिंग आज से शुरू की गई। जलपाईगुड़ी जिला प्राथमिक विद्यालय संसद के सामने आज सुबह से ही नौकरी के लिए आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। काउंसलिंग के लिए जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार काउंसलिंग अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। जलपाईगुड़ी जिला प्राथमिक विद्यालय संसद अध्यक्ष मनबेंद्र घोष ने कहा कि 2014 में टेट परीक्षा पास करने वालों के लिए यहां आज से काउंसलिंग शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार
चौथे पैनल की काउंसलिंग चल रही है। টেট 2014 কোয়ালিফাইড 10 ক্যান্ডিডেট যাদের ফোর্থ প্যানেল অফ মেরিট লিস্ট এদের কাউন্সিলিং হচ্ছে আজ থেকে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার মিলে জয়েন্টলি, এবং এটা আমাদের চলবে আজকাল এবং আগামী বৃহস্পতিবার, এবং প্রয়োজন হলে আমরা শুক্রবারও এক্সটেন্ড করবো, তার মোকাপ থাকবে। হ্যাঁ, এটাই। কতজন আজকে ক্যান্ডিডেট? সেটা আমাদের মোটামুটি আমরা 124 জনের করে দেখেছি, কালকে 124, বাকিটা পরে দিই। लोगों का तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी। नक्सलबाड़ी में अन्य पार्टियों को छोड़कर 90 परिवार तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। नक्सलबाड़ी प्रखंड अंतर्गत मनीराम अंचल के उत्तर दयाराम संतोषी मंदिर मैदान में तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य पार्टियों को छोड़कर कई परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इस बात की जानकारी देते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष अमर सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों के लगभग 90 परिवार तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सभी को आज पार्टी का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष अमर सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष पृथ्वीश रॉय, अंचल अध्यक्ष भानु बर्मन, सुजानी सुब्बा सहित अन्य कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे थे। तीस्ता नदी में डूबा 10 वर्षीय बालक, दोस्तों के साथ नहाने के दौरान हुआ हादसा। जलपाईगुड़ी के सुकांत नगर कॉलोनी में सोमवार को दोस्तों के साथ नहाने के दौरान 10 वर्षीय एक बालक तीस्ता नदी में डूब गया। घंटों मुशक्कत के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया। घटना के बाद इलाके में शोक व्यक्त है। नदी में डूबे बच्चे का नाम आकाश मोहम्मद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी शहर के सुकांत नगर कॉलोनी इलाके के रहने वाले यह बालक आज दोपहर दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। नदी की गहराई में तैरते समय अचानक वहां डूब गया। স্নান করতে এসে স্নান করে ওইখানে সামনে ওখানে জল অল্প জল আর ভুল করে দুটো বাচ্চা এখানে চলে আসছে। স্নান করতে যায় একজন জলে পড়ে গেছে, স্রোত ছিল জলে, পাওয়া যাচ্ছে না। ঘন্টাখানিক আগের ঘটনা, ঘন্টাখানিক ধরে খুঁজতেছি। কারণ পরিস্থিতি কি এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কোথায় আছে জালি ফালি আমরা তো সব দেখলাম, পাওয়া যাচ্ছে না। এখন ওইদিকেও লোক গেছে খুঁজতে, ওইদিকে কি এখন হলো কোনো জলের স্রোত, নিচে প্রচণ্ড জলের স্রোত। বাচ্চা দুইটা বাচ্চা ছোট বাচ্চা চুপ করে ওর মাকে না বলে চান করতে আসছে। উঠে একজন দুইজনে জলে জাম দিচ্ছিল, জাম করার পর একজন ডাঙ্গায় উঠে গেছে, আরেকজন উঠতে পারে নাই। ওইটা বাচ্চা এমনি ছোট 10 বছর এইখানেই বাড়ি। नदी में महिला का शव बरामद, इलाके में सनसनी। एनजेपी पुलिस ने सोमवार सुबह फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के चोबावेटा इलाके के जोरापानी नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया। नदी में शव बरामदगी की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने आज सुबह एक अज्ञात महिला का शव नदी में तैरते देखा और पुलिस को सूचना दी गई। शव बरामद होने की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। एनजेपी थाने की पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र करीब 50 साल है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। তো আমি তো জানি না সঠিক, তো আমি তো বাড়িতে ছিলাম, তো কেবলই আমি শুনলাম যে আমাদের এই গোবরা কুণ্ডুর বাগানে নদী দিয়ে পাশ দিয়ে বডি ভেসে যাচ্ছিল। তো আমি আসলাম, এসে দেখলাম পুলিশ এই মুহূর্তে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেল। তো আমি সঠিক জানি না কোথা থেকে আসছে না আসছে, আমি এটা বলতে পারবো না। আমি খালি জাস্ট দেখলাম, এসে পুলিশ উঠাই নিয়ে চলে গেল। বডি একটা মহিলার ছিল, বয়স্ক মহিলার মতোই ছিল। তো এইটুকুই আমি জানি, আর বেশি কিছু বলতে পারবো না। না না, পরিচয় আমরা জানি না বা আমরাও চিনি না। এখন পুলিশ নিয়ে গেছে, পুলিশ এখন তদন্ত। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।